You will be here for I think a month, right? Yeah. Yes, Yes, ma'am. I'll Yeah, come. yes, ma'am. I'm here for 1 month. Yeah, so I'll come soon. I have my exam. After that, I'll come. Sure, ma'am. Give me 2 minutes. I'm coming. Okay, okay. Yes, ma'am. Ma'am. Vivek, you are the back. Yeah, ma'am. And also, I got your assignment, Vivek. I don't know. In that question, I gave you 3 questions, but you only attempted 1 question. Which one? I attempted 2 questions. I left 1 question. I know. Out of the second, The second one also, you wrote appreciation and depreciation, but I didn't ask that. Ma'am, no. Like, I will tell you which question you are saying. You are saying this one, no? There was one assignment where I gave you what is managed floating, what is fixed, and what is this fixed one, flexible, and managed. These 3 questions were there. So No, first yeah. one, fixed one you did. Second one you wrote appreciation, depreciation. I don't know why. Which one? Like, fixed I have done. I didn't remember the date, but yeah, the assignment I gave you, there were 3 questions. What is a fixed exchange rate? What is flexible exchange rate? And what is managed floating rate? Managed. Ma'am. That question is one. I will tell you. That question is what is the foreign exchange? What is foreign exchange No, rate? that was one clear. That was clear. The next assignment. The next assignment is this one is what is the flexible exchange rate system and appreciation depreciation. Where is appreciation, depreciation? Yeah, they are asking about this now. I have written like 2 because I remember 2. And Can you manage send me the screenshot of that floating. assignment? Yeah, ma'am. Just send me. Can you send me the screenshot of that assignment where the question is written? Because I think you have done something wrong then. Like the question paper is different and you wrote something else, because when I opened it, the question paper was different. And I think you assigned the assignment in the wrong one. Maybe Maybe the wrong one. Like दूसरे question paper में दूसरे answers डाल दिए. No, ma'am. I think it will be not there. Okay, that question is okay. That question is define flexible foreign exchange rate system. Define floating foreign exchange system. So where is floating? You wrote appreciation, depreciation. मैंने तो appreciation, depreciation दिया ही नहीं है इसमें. Oh, then I attempted wrong one. That question. Yes. Let me see if Yeah, that time मैं दिखाती हूँ एक मिनट. If I but can. but only when we done the floating foreign exchange rate, we have done this one only flexible. हाँ, in the previous class only we did that. Vivek, सब कुछ कर लिया. I have written, wait, ma'am. We have done flexible exchange rate and this one explanation. Yeah, you have written, but I think आपने गलत assignment में क्योंकि question सही थे, but अपने appreciation, depreciation लिखा है उसमें. That's wrong. Yeah, ma'am. That question, yeah, that question I sent it from another one.
You यस, ask क्वेश्चन कहीं और के दिख लिया, आंसर्स कहीं और लिख लिए। या मैं क्वेश्चन लूंगा, वो क्या वो क्वेश्चन देखा मैंने देखा हाँ, अटेम्प्ट करा, फिर जब सबमिट करा था वो दूसरे असाइनमेंट में सबमिट कर दिया। या वो दूसरा असाइनमेंट में सबमिट हो गया वो वाला। दैट्स व्हाई। तो जब भी ये चेक करो, एक बार असाइनमेंट चेक कर लिया करो, बिकॉज मुझे फिर रिमार्क डालना पड़ता है इनकम्प्लीट। बट वेट मैम, floating exchange rate, when manage floating exchange rate we have done, हाँ, then manage fixed exchange rate when we have done. मैनेज फिक्स, Yeah, manage दैट foreign इज exchange फिक्स्ड rate. ओनली, फिक्स्ड ओनली। बस ये टर्म याद रखना, फिक्स, फ्लेक्सिबल और मैनेज, दैट्स इट। But you have written a fixed, flexible, floating and managed. फिक्स, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज। Managed. हाँ, तो फिक्स, फ्लेक्सिबल और मैनेज तो लास्ट वाला हो गया ना। ये देखो, स्क्रीन दिख रही है, मैम मैंने खुद अपनी स्क्रीन खोल रखी है उसी का ही। ये देखो, ये देखो। वेट मैम एक मिनट वेट। But I am asking about this one, manage foreign exchange rate. When we have done that question? Ma'am, I'm audible. यस, यू आर ऑडिबल, टेल मी। When we have done the manage foreign exchange rate. ये देखो, फिक्स एक्सचेंज रेट कर लिया, जिसमें फिक्स करती है गवर्नमेंट। फिर किया फ्लेक्सिबल, जिसमें मार्केट करता है, और मैनेज वाला भी तो कर लिया, जिसमें फिक्स तो मार्केट करता है, लेकिन बीच बीच में गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, जिसको डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। No, ma'am. होता है नहीं I पिछली will tell क्लास you. में? टेक No, योर नोट। listen. Yeah, I have taken that notes. We have done. हाँ, We have started from the flexible exchange rate system. हाँ, तो फ्लेक्सिबल Then we एक्सचेंज तो have. ये था, Yeah. और Then we मैनेज have वाला done. ये था। Yeah. दैट्स But इट। we have. But in that question you have asked about that question, na? Manage foreign exchange rate. हाँ, The तो last इसका question. नाम क्या था? इसको मैनेज फ्लोटिंग बोलो या मैनेज एक्सचेंज रेट बोलो, सेम है। Okay. ठीक है, वर्ड देखना बस, मैनेज लिखा है या नहीं लिखा, ठीक है। But according to me, the first one we have not done. I think, can you show me the first one? लाइक दिस फिक्स्ड, सबसे पहले फिक्स ही करा था विवेक, जिसमें Yes, yes, गवर्नमेंट। yes, 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 yes. Fix me, okay, ma'am. Gold one, that one. Government will part. Yes, ma'am. सो अब क्विकली आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट, ये तीनों रेट को फटाफट पढ़ो और मेरे को बताओ कि अगर कोई इसमें से क्लियर नहीं है तो। Okay, ma'am.
Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Ma'am. Excuse me, ma'am. Ma'am, are you there? Yes, Vivek, I'm here. What is the please explain me the adjustable pack system. Where it is where it is written. After the gold standard system. Adjustable peg system. Yeah. Okay, so adjustable peg system is basically एक करेंसी जो होती है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है, उसको बीच में रखते हैं और सारी करेंसीज को उससे कंपेयर करते हैं और उसके मुताबिक बताया जाता है कि $1 equals to this much rupees, $1 equals to this much dinar, $1 equals to this much Chinese rupee, like that. Okay, Yeah? ma'am. तो Yes. कहते हैं नहीं. Excuse me, ma'am. Ma'am. Yes. What is the meaning of effect on import? Where is written? It is the difference between appreciation and depreciation. This one, हाँ. depreciation. Last point. Last point what? Effect on import. Yes. तो import में क्या फर्क पड़ता है? तो इधर डिक्रीज हो जाते हैं इंपोर्ट और अगर एप्रिसिएशन होगा तो इंक्रीज हो जाएंगे इंपोर्ट. इंपोर्ट मतलब सामान को बाहर से लेना अपनी कंट्री में. Yes. और एक्सपोर्ट मतलब सामान को बाहर भेजना अपनी कंट्री से. Okay, ma'am. Now tell me the managed floating exchange rate because I didn't understand this topic.
मैनेज फ्लोटिंग में क्या है, जैसे नाम बता रहा है मैनेज, फ्लोटिंग मतलब चेंज हो रहा है, तो इट रिफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स। एक्सचेंज रेट तो मार्केट फोर्स डिटरमाइन कर रहे हैं, लेकिन बट देयर इज सम इंटरफेरेंस ऑफ द सेंट्रल बैंकिंग, लेकिन सेंट्रल बैंक फिक्स करने में कभी कभी इंटरफेयर करती है, इसलिए मैनेज फ्लोटिंग रेट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये बीच का रास्ता है, फिक्स और फ्लेक्सिबल के बीच का रास्ता है मैनेज। ठीक है, कभी कभी इसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं, क्योंकि आरबीआई अपना फायदा करने के लिए कभी कभी मार्केट की नहीं सुनती और अपने चला, राइट, तो वो एक टारगेट को अचीव करने के लिए, फिक्स रखने के लिए ये सब करती है। तो rate is freely determined by the market forces, but RBI intervenes in between to restrict the fluctuation of the exchange rate. Clear? Yes, ma'am. That's it. Okay. Okay, ma'am. Now we are starting a new topic. Yes, you are done with this. Yes. Okay. So now demand and supply of a foreign exchange, right? So demand and supply of a foreign exchange happens when the country want to trade their goods and service internationally. See, अगर आप फॉरेन कंट्री से कुछ खरीदना या बेचना चाहोगे तभी तो डिमांड करोगे, तभी तो सप्लाई करोगे, तभी तो फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी ना। पर अगर आपको अपनी कंट्री से ही खरीदना है तो फॉरेन एक्सचेंज की थोड़ी ना जरूरत है। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई तब आता है जब कंट्रीज ट्रेड करना चाहती है इंटरनेशनल, तो इसकी वजह से एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन भी होता है। तो अगर डिमांड हो रही है फॉरेन एक्सचेंज की तो क्यों हो रही है देखते हैं। So the demand of a foreign exchange arises when the people need foreign exchange to purchase goods and services from other countries. The demand of foreign exchange arises because of following reason. ठीक है, तो पहला क्या है, अगर आपको कुछ खरीदना है गुड्स या सर्विसेज दूसरी कंट्री से, तो ऑब्वियसली आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, तभी तो आप उधर जाकर खरीद पाओगे। तो पहला इंपोर्ट, अगर आपको वहां से कुछ समय, मैं अमेरिका गई, मुझे अमेरिका से एक रेफ्रिजरेटर पसंद आया, मुझे खरीदना है, अब मैं अमेरिका में इंडियन रुपीज तो नहीं दे सकती ना, No. आई नीड फॉरेन एक्सचेंज, मुझे इंडियन रुपीज के बदले डॉलर चाहिए तभी मैं वो खरीद पाऊंगी। तो जब मुझे इंपोर्ट खरीदनी है कुछ गुड्स एंड सर्विसेज, या मुझे वहां का एक डॉक्टर बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे उसकी सर्विसेज चाहिए, ठीक है, मुझे मतलब मेरे जॉइंट्स में पेन है, आई वांट दैट डॉक्टर ओनली टू ट्रीट मी, राइट, तो मैं सर्विसेज ले रही हूँ। तो अगर मैं वहां के डॉक्टर को दे रही हूँ तो मैं उसको किस में पे करूंगी, ऑफकोर्स डॉलर्स में पे करूंगी, इंडियन रुपीज में थोड़ी ना पे करूंगी। ठीक है, Yes, ma'am. तो Yeah. तब मुझे फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत चाहिए, तो तब मैं डिमांड करूंगी कि मुझे फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। सेकंड, यूनिलैटरल ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल मेरी एक फ्रेंड रहती है यूएस में, मुझे उसे गिफ्ट भेजना है, तो मैं वहीं से गिफ्ट खरीद के वहीं भेजूंगी ना, तो उस टाइम पे भी क्या चाहिए, डॉलर चाहिए, तभी तो उसे Yes. भेज पाऊंगी, तो उस टाइम भी मैं डिमांड करूंगी कि भाई मुझे तो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। नाउ टूरिज्म, फॉरेन एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड टू मीट द एक्सपेंसेस मेड ड्यूरिंग द फॉरेन टूर। जब आप फॉरेन टूर में जा रहे हो तो वहां पर आप होटल्स में रहोगे, वहां पे आप घूमोगे फिरोगे, तो आप इंडियन रुपीज थोड़ी ना चलाओगे, वहां पे तो जिस कंट्री में जा रहे हो उसी कंट्री की करेंसी चलेगी, तो उस टाइम पे भी आप डिमांड करोगे कि मुझे फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। नाउ स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन लाइक सट्टा लगाना, कभी कभी क्या करते हैं मार्केट में, शेयर मार्केट और ये सब खरीदता है ना, तो इसमें क्या होता है, Yes. ऑब्वियसली अगर आप यूएस के शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो यू नीड यूएस डॉलर्स, आप जो पैसा लगाओगे वो डॉलर्स में लगाओगे। तो यहाँ पे अगर फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है टू गेन मनी फ्रॉम दिस पैकेट, तो लोग क्यों लगाते हैं ये सट्टा वगैरह या पैसे शेयर मार्केट्स में क्यों लगाते हैं, बिकॉज दे वांट टू गेन मनी, उनको ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर Yes. आपको कुछ एसेट, कुछ सामान खरीदना है फॉरेन कंट्री से, लाइक उनका शेयर्स खरीदना है, उनकी बिल्डिंग खरीदनी है, उनसे कोई बॉन्ड खरीदना है, तब भी तो आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए ना। तो इन सारी चीजों में बेसिकली आप डिमांड करते हो कि आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। क्लियर? चाहिए। पहला, Yes. अगर आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हो गुड्स, सेकंड, अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, भिजवा रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो कुछ, टूरिज्म आप घूमने जा रहे हो, स्पेकुलेशन आपको शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगा रहे हो, या कुछ एसेट खरीद रहे हो लाइक बॉन्ड खरीद रहे हो, वहां बिल्डिंग खरीद रहे हो, तो इस टाइम पे भी आप डिमांड करते हो कि भाई मुझे फॉरेन एक्सचेंज हो, तभी तो आप ये सारी चीजें कर पाओगे, अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, Okay, ma'am. Scroll down. Now I have to write this thing. यस, Then scroll down. I have to see यू the विल राइट definition. डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सो यू विल राइट फर्स्ट दिस, देन उसके बाद डिटर्मिनेंट्स। Okay, ma'am.
I'm scroll down. Ma'am, please scroll down.
Ma'am, can you scroll up? Ma'am, can you explain this pink one?
Sorry, Vivek. Can you explain the second last one? Can't you see this one, speculation? Yeah, ma'am. I'm telling you. Speculation is nothing. It's like a foreign exchange is required when people want to gain money from the speculative activities, right? So whenever you need money, why we do speculation? This speculation in Hindi we say satta and all that, share markets mein paise lagana and all that, right? So why people do all this? Because they want to gain money, right? Nobody play this all this thing just to lose money. Everybody plays this because they want to gain money. So if you want to invest in the share market of US, you need the dollars, right? So that's why speculation also demand for foreign exchange. Okay. Okay, ma'am. Yes. Done, ma'am. Done, ma'am. Okay. Now quickly read it up and let me know any point is not here. Okay, then we will do this relationship between price of a foreign exchange and demand. Then, now we can do next topic. Yes. Now the relationship between price of a foreign exchange and demand of a foreign exchange, right? So if price
of foreign exchange will increase, will you purchase the foreign exchange? किसी भी चीज का प्राइस No. बढ़ता है तो खरीदते हैं? बताओ, पहले आपको $1 No, ma'am. 10 रुपए का मिल रहा था, अब $1 100 रुपए का मिल रहा है, तो खरीदोगे? नहीं, राइट? नहीं तो मैम, negative नो। relation है, अगर प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड नीचे Yeah. आ जाती है, प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है. So there exists a negative relationship between foreign exchange rate and demand of a foreign exchange. The demand curve of a foreign exchange is a downward sloping. वो downward आ रहा है. Because inverse relation, inverse मतलब उल्टा relation. Demand और foreign exchange rate के price में. So when the foreign Foreign exchange rate exchange decreases, people ultimately demand more increase. foreign exchange. When the foreign exchange rate rises or increases, its demand decreases. Clear? अगर उसका प्राइस कम होगा तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा तो लोग डिमांड कम करेंगे. क्लियर? Yes, ma'am.
Ma'am, please explain it again. Sorry. Sorry, Vivek. Can you hear me? Explain it again. Explain it again. Okay. So relationship between foreign exchange and the demand of foreign exchange. तो फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर बढ़ जाएगा तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, तो इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है, दूसरा कम होता है तो दूसरा बड़ा हो जाता है, राइट। सो इससे इनका जो वो है ग्राफ है वो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव है, ठीक है। अगर अपवर्ड होता तो मतलब पॉजिटिव है, अगर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रही है, ऐसा होता। पर यहाँ पे एक बढ़ रहा है तो एक नीचे आ रहा है, इससे डाउनवर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब पीपल डिमांड करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा तो पीपल डिमांड करेंगे मोर फॉरेन एक्सचेंज, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा तब डिमांड करेंगे लेस फॉरेन एक्सचेंज। Am I audible now, Vivek? Can you hear me? Yes, ma'am. तो ये समझ आया नहीं आया? This one? Okay, wait, I'll explain it. Yeah, ma'am, please explain it again. Okay, am I audible now? Can you hear me? Yes. तो फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशन, उल्टा रिलेशनशिप होता है, एक बड़ा होता है तो दूसरा कम होता है, दूसरा बढ़ता है तो दूसरा कम, और वो कम होगा तो वो बढ़े, राइट। सो इसको कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो उसका ग्राफ होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। Okay. मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है। तो व्हेन द फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीजेस पीपल डिमांड मोर, ठीक है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रेट जब बढ़ेगा तब डिमांड करेंगे लेस, ठीक है। तो आप इसको रीड करो, समझ आ जाएगा। Yes, ma'am. Okay. फिनिश। Yeah, ma'am, please tell me with the graph. द ग्राफ, ग्राफ ऐसा बनता है, नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि उल्टा रिलेशन ना नीचे आ रहा है, अगर पॉजिटिव रिलेशन होता तो ऊपर जाता, जस्ट मेक इट लाइक दिस, ओके।